Welcome to another episode, and today I have an interesting conversation lined up with Mr. Sunil Lunawat, the director of Aravali Mines and Minerals and founder of Esprit Stone, which has the brand Haiku, a renowned name in the quartz marble industry. As a second-generation family-run business, in his leadership, he has taken his legacy forward in terms of quality and innovation in natural and artificial stone and marble in mining and manufacturing. With his forward-thinking approach, his brand has elevated to new heights in both domestic and international markets. I do try and be a bit of a perfectionist. That's why I'm always looking for affordable and sustainable ways to add elegance to my home. When I discovered Haiku, I was super impressed with their products and designs that really embody elevated living. Their extensive marble collection with Italian prints and state-of-the-art finishing and polishing made me fall in love with the marble all over again. What I found really exciting about associating with Haiku is their new additions like Neo Marble and Terrazzo. I literally want to pick up this Terrazzo piece and take it home, but will need 4 people to carry it for me because it's the largest slab size available in India. A sure shot game changer for architects and interior designers in our country. I'm really proud to be associated with Haiku and personally recommend the brand. It is the only name you need to remember for any luxury surface needs. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation. Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you, Sunil ji, so much for joining us today. Now, artificial stones और marble अभी बहुत ज़्यादा popularity gain कर रहा है, not just in the Indian market, globally तो था ही, but Indian market में भी बहुत popular हो रहा है. क्या reasons है इसके सर? So like हर चीज़ का ट्रेंड होता है. So with the trend, अभी ट्रेंड चल रहा है क्वार्ट्स, आर्टिफिशियल स्टोन्स, और इनमें एक काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस की पॉसिबिलिटीज़ है जो कि नेचुरल मार्बल में नहीं मिल पाती है. आ जाती है और सस्टेनेबिलिटी भी रहती है इसमें. स्ट्रेंथ वाइज, पोरोसिटी, ये सारी चीज़ें देखें तो ये क्वालिटी वाइज काफ़ी बेटर रहता है, इसलिए काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है. तो सर ट्रेंड मेकर्स जनरली या तो यूएस मार्केट होता है या यूरोपियन मार्केट होता है. तो जब हम आर्टिफिशियल स्टोन्स और मार्बल की बात करते हैं, क्या ये ट्रेंड भी पहले वहीं से आया और अब इंडिया में ये कितना पॉपुलर हो रहा है? सो लाइक जो आर्टिफिशियल मार्बल क्वार्ट्स है, इनकी स्टार्ट ही यूरोप से हुई है. इन्होंने ही इनोवेट किया है. और उनका मार्केटिंग भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है, तो यूएस में उन्होंने काफ़ी मार्केट किया है. तो उस हिसाब से वहीं से स्टार्ट हुआ है, और इंडिया में भी अब इनका काफ़ी ट्रेंड चलन बढ़ रहा है. सो इट्स ग्रोइंग नाउ. ओके. एंड सर, अरावली माइंस एंड मिनरल्स इज अ वेरी बिग नेम इन उदयपुर. अरावली ऑनिक्स की तो एक मोनोपोली है. तो जब आपने ये ट्रांजिशन लिया टू नेचुरल स्टोन्स एंड मार्बल टू आर्टिफिशियल स्टोन एंड मार्बल, एक तरीके से ये आप ही के बिजनेस के लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा कि ऑन वन साइड यू आर डूइंग नेचुरल एंड देन यू शिफ्ट टू आर्टिफिशियल. तो क्या थॉट था एंड व्हाट लेड यू टू डू इट? क्या ये ग्लोबल मार्केट ने ही आपको फोर्स किया या वाज देयर सम अदर रीजन? या सो हम लोग हमारे ऑनिक्स की मार्केटिंग के लिए या नेचुरल मार्बल की मार्केटिंग के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं. तो ट्रैवल करने से हमको पता ही चल जाता है कि आने वाला ट्रेंड क्या है, क्या फैशन है स्टोन्स में. सो उससे ही पता चला कि क्वार्ट्स इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग जो आने वाला है. तो उससे हमको लगा, और जो हमारे कस्टमर्स ग्लोबली हैं उनसे जो कनेक्ट था, उनसे जो पता चला, उस हिसाब से हमको पता चला क्वार्ट्स इज. पर शायद आपके पास एक नॉलेज तो थी कि नेचुरल मार्बल, तो आपके पास जो रॉ मटेरियल था वो तो हमेशा से ही था, और कुछ रॉ मटेरियल नेचुरल का यूज होता है जिससे आर्टिफिशियल बनता है. तो शायद एक एडवांटेज भी था आपके पास. या एक एडवांटेज भी था, और ये भी एक है कि आपने ये
कोडक और नोकिया वाली स्टोरी सुनी हाँ, है yes. कि आप Changing चेंज with को अडेप्ट times. नहीं करेंगे तो राइट एंड आपने बहुत सक्सेसफुली किया है. आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है इन उदयपुर एंड शायद आप एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हो. योर कंपनी इज एस्प्री स्टोन्स और Yeah, उसका our एक company is ब्रांड. Esprit Stone and the brand is HiQ. So we have 4 production line for quartz. Okay. And another we have another unit HiQ stones in वहाँ हम लोग नेचुरल जो डोलोमाइट आता है उससे आर्टिफिशियल मार्बल बनाते हैं. ओके ओके. सो अभी हमारी बकेट लिस्ट काफी बड़ी हो गई है. इन दैट वी हैव मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, composite marble, terrazzo, semi-precious stone. Oh wow. So I mean, like you said कि आपकी bucket list बहुत बड़ी हो रही है. So many products to add into it. सर जब हम global markets की बात करते हैं पूरे market dynamics बदल जाते हैं. एक Indian market को समझना easy होता है because हम एक तरीके से consumer कभी ना कभी तो होते ही है. पर global market को समझने के लिए क्या skills चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है? आई रियली वुड वांट टू नो दैट फ्रॉम यू बिकॉज आई थिंक यूएस में आपका एक बहुत अच्छे स्टैंडिंग है एंड सो इज द यूरोपियन मार्केट. सो ग्लोबल मार्केट में एक तो क्वालिटी के लिए आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ 100% परफेक्ट क्वालिटी ही जाती है. एंड टेस्ट भी हाई एंड टेस्ट होता है, लेटेस्ट लग्जरी डिजाइंस होती है. तो उन सभी चीज़ों को और क्या ट्रेंड आ रहे हैं वो स्टडी करके उन ट्रेंड के हिसाब से डिजाइनिंग करते हुए हम लोग. ओके एंड सर क्योंकि इंडियन मार्केट एक थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है, क्या ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है कभी कभार फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट एंड गिव हाई एंड प्रोडक्ट्स, या नाउ द मार्केट हैज चेंज्ड? नहीं, इंडिया में भी आई थिंक 3 तरह के मार्केट है. एकदम चीपर, मिडिल एंड हाई एंड लग्जरी मार्केट भी है, सभी है. और लाइक ग्लोबली भी दोनों तरह के मार्केट हैं. ओके. सो बट ग्लोबली क्या आप जनरली हाई एंड मार्केट्स को टारगेट करते हैं या मिडिल? नहीं, हम लोग सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. It's सो catered to हमारी all. रेंज मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक चलती है. राइट राइट. सर टू नो अ लिटिल बिकॉज मैं थोड़ा आपके बारे में जानती हूँ और स्टडी भी बहुत किया है कि आपका ये आप एक सेकेंड जनरेशन फैमिली रन बिजनेस है एंड नाउ द थर्ड जनरेशन इज ऑल्सो गेटिंग रेडी. सो कभी कभार कुछ फैमिली रन बिजनेसेस के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस होते हैं एंड उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं. सो आई वांट टू नो 1 or 2 प्रोज एंड 1 or 2 कॉन्स. या तो मेरे केस में मेरे को एडवांटेजेस ज़्यादा मिले हैं. तो क्योंकि मैंने अपने फादर एंड ब्रदर उन दोनों को देखा है. सो फादर से तो कोर वैल्यूज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें देखी. भैया से, इवन फादर से भी हार्ड वर्क करना करेक्ट काफ़ी सीखा है. राइट. और एंड व्हाट डू यू वांट टू पास ऑन टू द थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन लाइक जो हम लोगों ने किया है अडॉप्ट, तो वो उनको भी वो कैरी इट फॉरवर्ड. राइट. हाँ, बस ये है कि ये जनरेशन टेक सेवी ज्यादा होती है शायद. यू नो अडेप्टेबिलिटी शायद थर्ड जनरेशन में थोड़ी सी बेटर होती है, जल्दी चेंज कर सकते हैं. या लेकिन खैर अभी हो भी गया ऐसा कि आप जनरली आपको फास्ट चेंज करना पड़ेगा. Absolutely, अदरवाइज राइट. आई गेस वो कोडैक वाली कहानी वापस आ जाएगी या नोकिया वाली. हाँ, लेकिन पहले ट्रेंड काफी लंबे चलते थे. अब Correct. ट्रेंड बहुत शॉर्ट स्पैन में ही चेंज हो जाता है. राइट राइट राइट. सर वन इज कांग्रेचुलेशंस, एस्प्री स्टोन का आईपीओ आया है व्हिच वाज ओवर सब्सक्राइब्ड. दैट्स अमेजिंग. एंड उदयपुर से ज्यादा कंपनी नहीं है एंड शायद यू आर अमंग दोस फ्यू. स्टोन्स में भी काफी कम कंपनीज है उदयपुर से. करेक्ट. सो एक तो आईपीओ में जाने का आपका डिसीजन, आपने क्यों वो एक ट्रांजिशन लिया टू गेट इनटू आईपीओ, एंड फ्यूचर में हाउ डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एस्प्री स्टोन एंड ऑल, आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है? सो आफ्टर दिस आईपीओ हम लोग लिमिटेड कंपनी हो गए हैं और लिमिटेड कंपनी होने के बाद में एक विजिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, जो फंड आता है उससे वो भी हम लोगों को ग्रो करने में, ब्रांडिंग और इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड ब्रांडिंग पे आजकल आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. दैट्स बिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन था टू फोकस अ लॉट मोर ऑन ब्रांडिंग क्योंकि ये आज की नीड ऑफ द आवर है? या डेफिनेटली नीड ऑफ आवर. क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली जब मार्केट करना स्टार्ट किया था, सो वी फेस्ड कि इतना इजी नहीं है मार्केट करना विदाउट ब्रांड. राइट. सो हमने ब्रांड बनाया, उसकी पूरी
there's been a whole journey. वो हाँ, brand it's a creation big में भी journey. साल लग जाते Yeah, हैं, yeah, साल right? लग जाते हैं. Absolutely. Sir, आपका experience in the stone industry is immense. क्यों मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ और हमारी conversations बहुत हुई है ना. मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे इतनी knowledge दे दी है कि मैं एक छोटा सा तो mining और minerals related कुछ start कर पाऊंगी. कुछ एडवाइस आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो आर्टिफिशियल स्टोन या मार्बल या नेचुरल स्टोन या मार्बल में एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं? कुछ एडवाइस आपके साइड से, दे वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू. या सो पहले माइनिंग करना और जो सारी चीज़ें थी वो इजी था क्योंकि मैन पावर भी अवेलेबल था. ओके. सारी चीज़ें थी. अभी चेंज हो गया. अभी मैन पावर की शॉर्टेज हो गई लेकिन मैकेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी मैकेनाइजेशन ने ले लिया है. लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी. आज हम लोग पूरी बिलो द ग्राउंड की सारी स्टडीज, क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है, ये स्टडी करके उस हिसाब से माइनिंग एवरीथिंग प्लान कर सकते हैं. करेक्ट. सो नेक्स्ट जनरेशन से यही है कि उन लोगों को प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर सर्वे करके ये सारी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए ताकि फेलियर के चांसेस मिनिमम रहे. कम रहे. राइट. बट अभी भी ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो है ही, तो वो भी एक एरिया उनको थोड़ा कैश फ्लो, कैपिटल के वो मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग सारी चीजें देखनी पड़ती है कि उन कंज्यूमर जो इंडस्ट्री है जो उनको कंज्यूम करने वाली वो ज्यादा डिस्टेंस पे तो नहीं है. सारी चीजें. करेक्ट. राइट. सर, your Aravali Mines and Minerals, Esprit Stone have come a long way. उनका उदयपुर में हम आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो मैं जानना चाह रही थी कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड मे बी 5-6 years डाउन द लाइन आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? सो जैसा आपने बोला उदयपुर में सभी जानते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबली भी सभी लोग जाने. और हमारा एक्सपेंशन प्लान भी यही है कि ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टोर्स हो, डीलर्स हो, जिनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा उस नेटवर्क से इंडिया में सेल कर पाए. एंड ग्लोबली भी यही है. राइट. तो सर, आपकी कंपनी ज्यादातर रिटेल सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है और डू यू वांट टू हैव मोर पीपल जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स दे सके एंड दे सेल इट फॉर यू? क्या आप अपने खुद के एक्सपीरियंस सेंटर्स प्लान कर रहे हैं? या सो कहीं कहीं जैसे किशनगढ़, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट है, हब. तो वहाँ हम एक एक्सपीरियंस सेंटर कम स्टॉक यार्ड कर रहे हैं. मुंबई Again, right, सो वहाँ के आर्किटेक्ट्स भी वर्ल्ड फेमस है, तो वहाँ भी एक एक्सपीरियंस सेंटर एंड स्टॉक यार्ड प्लान कर रहे हैं. राइट. तो ज्यादातर हम लोग डीलर्स के थ्रू ही बेचते हैं, बट हमारी एक पैरेलल टीम भी है जो प्रोजेक्ट्स पे काम करती है. सो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रिसेंटली हम लोग ये अडानी का जो नया एयरपोर्ट आ रहा है मुंबई में, राइट, एब्सोल्युटली, एक्सटेंशन हो रहा है, T3 बन रहा है अब. सो वहाँ अपना ये आर्टिफिशियल स्टोन जो है, कंपोजिट मार्बल, वहाँ हमने काफी सप्लाई किया है. ओह लवली. इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि कहाँ आपका एक ऐसा स्टोन लगा है जहाँ यू आर वेरी प्राउड कि आपका स्टोन वहाँ यूज हुआ है? रिसेंटली ये है. देन वी आर डूइंग मैक्स हॉस्पिटल, जो इंडिया में उनके 7 हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं. ओके. एंड ग्लोबली सर, कहीं आप गए एंड यू वर लाइक, ओ वाओ, ये तो हमारा स्टोन यूज हुआ है या हमारा? रिसेंटली लाइक मिडिल ईस्ट में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, ऑल ब्रांडेड स्टोर, गुची और इन जगह पे आपको ऑनेक्स लगा हुआ मिल जाएगा. एंड वी हैव नोटिस्ड इट सो मेनी टाइम्स. या डज दैट गिव यू एनी स्पेशल डिस्काउंट व्हेन यू टेल देम इट्स योर्स? जस्ट सेइंग ऑन द लाइटर नोट. सर, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू. आपके पास इतना इंसाइट है. द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज यू आर सो हम्बल एंड दैट्स व्हाई दीस कन्वर्सेशंस बिकम सो इंटरेस्टिंग. आई एम ग्लैड दैट यू कुड जॉइन अस टुडे एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग. Thank you for inviting. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.